Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. Students, today is 21st August 2020 on Friday, and lesson 5 admission of a partner. And student, now we solve some more question of this lesson, and topic is gaining and sacrificing ratio. Okay, so student, firstly we start question number 10. In question number 10, X and Y were partners sharing profits in the ratio 3:2. They admitted P and Q as new partners. X surrendered one-third of his share in favor of P and Y surrendered one-fourth of his share in favor of Q. Calculate new profit sharing ratio of X, Y, P and Q. Okay, student. So in this question, there are firstly two partners, and after that new partners are P and Q, and ratio of new partners P is X surrender one-third share of his share in favor of P and Y surrender one-fourth of his share in favor of Q, and find out the new profit sharing ratio. So student, question number 10, and information given is old partners X and Y, old ratio 3:2, new partners P and Q, X surrender one-third of his share in favor of P and Y surrender one-fourth of his share in favor of Q. New ratio. So students, this is informations. These informations are given in the question, and now we start solution. So student, firstly in the question share of P means, देखिए यहाँ पर दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, एंड टू मोर पार्टनर्स को उन्होंने परमिशन दे दी है पी एंड क्यू को फर्म में न्यू पार्टनर के लिए एज ए पार्ट ऑफ एडमिशन के लिए, एंड एक्स सेंडर वन-थर्ड ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी. इट मीन्स एक्स अपने शेयर में से वन-थर्ड जो शेयर है वो पी को दे रहा है. सो इट मीन्स शेयर ऑफ पी. सो पी का शेयर कितना होगा? वन-थर्ड शेयर ऑफ एक्स. अब एक्स का शेयर कितना हमारा 3/5 इंटू वन-थर्ड. सो 3 1 3 और 5 3 15. ओके, एंड नाउ व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ एक्स? अब एक्स का रेशियो कितना होगा भाई? पहले से 3/5 था, उसमें से 3/15 उसने उसको दे दिया. अब रिमेनिंग कितना हुआ जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे? सो 6/15. इट मीन्स नाउ न्यू शेयर ऑफ एक्स इज 6/15 एंड शेयर ऑफ पी इज 3/15. एंड नेक्स्ट शेयर ऑफ क्यू. अब हम निकालेंगे क्यू का शेयर. वाई सरेंडर वन-फोर्थ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ क्यू. वाई अपने शेयर में से वन-फोर्थ जी रहा है, तो वाई का शेयर कितना है? 2/5. सो 2/5 इंटू 1/4. 2 1 2 एंड 5 4 20. तो अब रिमेनिंग जो न्यू रेशो है, अब वाई का कितना हुआ? 2/5 पहले से था उसका, उसमें से 2/20 माइनस हो गया. हमने सॉल्व किया तो निकल के आ गया आपका 6/20. इट मीन 6/20 इज द न्यू रेशो ऑफ वाई एंड शेयर ऑफ क्यू इज 2/20. एंड स्टूडेंट, नाउ न्यू रेशो इज एक्स वाई पी क्यू. एक्स का हो गया हमारा 6/15. ओके, वाई का रेशो 6/20 एंड पी का रेशो 3/15 एंड क्यू का रेशो 2/20. ओके, अब हम इसको इक्वल करने के लिए हमने एलसीएम यहाँ पर हमने 60 ले लिया. सो मैंने निकाला ये 15 4 जा 60 एंड 4 6 जा 24. इस तरीके से 18 12 एंड 6. ओके, सो अब हमने इसको और शॉर्ट कर लिया तो 4 3 2 1. हमने इसको डिवाइड कर लिया 6 से. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24. सो 4 3 2 1. ओके स्टूडेंट, so this is the new ratio of P, Q, X, Y, P and Q. Okay student, so this is the question number 10. And now we solve next question. Students, next question is question number 16. Student, question number 16 is a important question and good question. Question number 16, A, B and C are partners sharing profits in the ratio 2:1. D is admitted as new partner for 1/6 share. C will remain his original share. Calculate the new profit sharing ratio and sacrificing ratio. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी 3 पार्टनर्स है, उनका रेशियो दे रखा है. न्यू पार्टनर फोर्थ डी को हम लोग एडमिशन दिया है 1/6 पार्ट के लिए, बट कंडीशन ये है कि सी विल रिमेन हिज ओरिजिनल शेयर. इट मीन सी अपने शेयर में से कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है. अब आपको न्यू रेशियो का निकालना है. So student, this is the solution. So first is given information, old partners ABC, old ratio 2:2:1,
new partners D and ratio of new partner is 1/6 share. Okay, 1/6 share and C will remain his original share. ओके, न्यू रेशियो निकालना है और हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है. अब स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक सिचुएशन में आपको क्लियर करता हूँ. सपोज करिए ये कोई प्रॉफिट है. ओके, इस प्रॉफिट को ए बी एंड सी ऐसे डिवाइड करते हैं. ए बी एंड सी इनके बीच ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है 2:2:1. अब जब न्यू पार्टनर यहाँ पर डी आता है और डी को रेशियो दिया जा रहा है 1/6. ओके, अब कंडीशन ये है कि 1/6 शेयर में सी ने मना कर दिया कि भाई मैं तो अपना हिस्सा नहीं दूंगा. ओके, इट मीन ये जो पार्ट सी का है, सी ने साफ कह दिया भाई मैं अपने में से कोई शेयर नहीं दूंगा. मैं आप दोनों को देना है, आप दे सकते हो. अब इन दोनों का रेशियो कितना है 2 और 2. इट मीन ये दोनों तो इक्वल हो गए वो. ठीक है, अब देखा जाए तो अब इस प्रॉफिट के अंदर से डी को भी एंट्री दी जाएगी. मान के चलो अगर डी को एंट्री यहाँ दी जाती है इस तरीके से, अगर ये पार्ट अगर डी का होता है और ये पार्ट हो गया आपका 1/6. ठीक है, तो अब इस प्रॉफिट में से हमारे कितना का शेयर होगा 4 पार्टनर्स का शेयर हो गया हमारा. अब कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, लेट द टोटल शेयर, मान के चलो हमारा टोटल शेयर हमारा 1 है, मतलब इट इज पूरे प्रॉफिट हमारा 1 हो गया. सी का शेयर कितना है 1/5. ओके, बिकॉज 2 + 2 + 1 2 2 4 + 1 5, तो 1/5 हो गया सी का, जो सी ने देने से मना कर दिया. अब शेयर ऑफ डी, डी जो है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, तो डी को तो हमें शेयर देना पड़ेगा वो. ओके, अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा? इट मीन्स अब इस प्रॉफिट में से इसने तो देने से मना कर दिया और इसको डी को शेयर आप और दे. मान के चलिए डी का शेयर अगर इतना है तो अब ये बचा इतना रिमेनिंग पार्ट. ये पार्ट अकेला किसके दो रेशियो में आ जाएगा? ए एंड बी के, और इनका रेशियो कितना इक्वल है. इट मीन अब जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, इट मीन्स टोटल प्रॉफिट में से सी का शेयर और डी का शेयर लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट ए और बी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, सो रिमेनिंग शेयर्स 1 - 1/5 तो सी का माइनस करो, प्लस 1/6 डी का माइनस करो. तो 1 - 1/6 जब हमने इसका एलसीएम लिया 30, तो 6 5 6 30 एंड 6 5 30, तो 6 + 1 11/30. इट मीन्स 1 - 11/30 माइनस करेंगे तो 19/30. इट मीन्स इस पूरे शेयर में से सी का और डी का जो शेयर है, इतना जो शेयर है अगर हम लेके चलते हैं तो इस शेयर की जो वैल्यू है वो है आपकी आ रही 11/30. ओके, इट मीन्स 1 में से 11/30 माइनस कर दिया, रिमेनिंग हुआ कितना हमारा 19/30. क्लियर? अब ये 19/30 पार्ट में ये वाला पार्ट, अब जो ये वाला पार्ट है इस वाले पार्ट की जो वैल्यू है वो 19/30, इस पार्ट की वैल्यू बस ये 19/30 पार्ट है. और इस पार्ट में दोनों इक्वल के पार्टनर थे पहले से, तो अब इनको इसी पार्ट का इक्वल पार्ट मिलेगा. तो एज का न्यू शेयर कितना होगा हमारा? ए का न्यू शेयर 19/30 इंटू हाफ. ओके, 19/60. बी का न्यू शेयर ये भी 19/60, सॉरी 30 इंटू 1/2 19/60. ओके, अब टोटल न्यू शेयर ए बी सी डी 4 पार्टनर में, ए का रेशियो कितना हमारा 19/60, बी का 19/60, सी का कितना है? सी का तो ऑलरेडी पहले से हमारा 1/5 है. ओके, 1/5 है, ये देने से मना कर दिया. और डी का जो शेयर है, डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए आ रहा है हमारा, तो डी का हो गया 1/6 शेयर. अब हमने इसको पहले इक्वल किया है, हमने इसका डी कॉमन लेने के लिए हमने पहले 60 ले लिया. तो ये 19 60 एंड 12 और आपका 6 10 60 10, तो इट मीन्स 90 19 12 और ये 10 90 90 12 10 स्टूडेंट, और ये हमारा निकल के आ गया न्यू रेशो. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि आप लोगों से न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा है. अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? यू नो वेरी वेल, फॉर्मूला ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो एंड ओल्ड रेशो ऑफ ए. अब ए का ओल्ड रेशो कितना था? ए का ओल्ड रेशो पहले से था हमारा स्टूडेंट कितना 2 + 2 + 1 2/5. ओके, 2/5 माइनस न्यू रेशो कितना है ए का 19/60. ओके, हमने इसका हम लोगों इसको जब सॉल्व किया तो एलसीएम 60 ले लिया, ये आपका 12 5 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60 एंड 12 2 जा 24, 60 1 जा 60 एंड 19 1 जा 19, तो हमने माइनस किया 5/60. और सेम हमारा निकल के आ जाएगा बी का, बिकॉज बी का भी ओल्ड रेशो कितना था 2/5 ही है. बी का ओल्ड रेशो ये हमारा, ये भी 2/5 हमारा सेम है हमारा ये, और न्यू रेशो इसका भी 19/60 है. तो हमने सॉल्व किया तो ये भी 5. इट मीन्स रेशो का निकल के आ गया 5 और 5 सेक्रीफाइसिंग रेशो, इट मीन्स इक्वल. सो दिस इज द न्यू रेशो एंड दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16.
And students, now you solve all the question of this topic, new ratio and gaining and sacrificing ratio. And if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me.